Our new video on the topic of polyphase circuit or three-phase circuit. It is very important to understand the three-phase circuit or polyphase circuit because entire power system in the worldwide or even in India is developed in three-phase system according to three-phase system or three-phase technology. Okay, that means the generation, transmission and distribution of power, whatever done is actually done by the three-phase system. Okay, the polyphase means two or more than two phases. Okay, the three phase R, Y and B. Okay, R is the reference phase, Y and B. Basically the phase displacement between R, Y and B is 120 degree. Okay, this is the phasor diagram for the three phase system. Here is the reference phasor VR. Vy lags behind 120 degree and Vb leads by 120 degree. So therefore the equations will be Vr is equal to Vm sin omega t, Vy is equal to Vm sin omega t minus 120 degree and Vb is equal to Vm sin omega t plus 120 degree. Minus sign indicates that from Vr to Vy lags by 120 degree. Plus sign indicates that the Vb voltage leads by 120 degree to VR because VR as a reference phasor. We are considering it as a reference phasor. Okay, so these are the three basic equation of three phase. Next आता है the types of the system. So here is the types of three phase system. There are three types: three phase 3-wire star connected system, three phase 4-wire star connected system and three phase 3-wire delta connected system. Okay, तो first आता है three phase star connected system, three phase 3-wire. You can see the figure here, the three phase 3-wire star connected system. One is the neutral point and another one are the open point. तो स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में एक जो एंड होता है वो ओपन होता है और एक जो एंड होता है वो कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं. ये इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम का क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है. नेक्स्ट आता है थ्री फेज 4-wire सिस्टम. तो हियर इज द थ्री फेज 4-wire सिस्टम. द कॉमन पॉइंट न्यूट्रल इज ऑल्सो एज द वायर. तो हियर यू कैन सी द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर थ्री फेज 4-wire सिस्टम. नेक्स्ट आता है आपका थ्री फेज 3-wire डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. तो दिस इज द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. दिस इज इट्स इक्विवेलेंट सर्किट. यहाँ पर जो बेसिकली होता है ये क्या है, ये सपोज करो 1 है, ये 1 डैश है तो ये 2 होगा, ये 2 डैश हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 3 डैश हो जाएगा. ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रॉ करके दे सकते हैं. समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है डेराइव द वोल्टेज एंड करंट रिलेशन फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम और थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम. तो हियर इज द थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर पर्टिकुलरली आर, वाई और बी. आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे. सिमिलरली वाई और बी के वोल्टेज को और बी से आर के बीच के वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे. कॉमन पॉइंट न्यूट्रल और रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम फेज वोल्टेज बोलेंगे. इस फिगर को देखकर आपको समझ में आएगा कि जो फेज कंडक्टर है और जो लाइन कंडक्टर है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं. इसका मतलब फेज से फ्लो होने वाला करंट और लाइन से फ्लो होने वाला करंट दोनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा. ओके, तो हियर आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू VRY, VYB इज इक्वल टू VBR. फेज वोल्टेज दिस line current and phase current. The first relation is current relation. So you can see here the current relation as I already told you about this, that is the phase conductor and the line conductor in this system is connected in series with each other. Therefore the current flowing to phase and the line will be remains same. That means line current is equal to आपको क्या मिलेगा, relation phase current मिलेगा. Next आता है voltage relation. वोल्टेज रिलेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको सर्किट की तरफ फिर से मैं लेके जाता हूँ. यहाँ पर आप देखो हमने क्या लिखा है, ये लाइन वोल्टेज है VL. VL इज इक्वल टू क्या है, VRY, VYB और VBR. तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, वोल्टेज या वोल्टमीटर जब आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो इसमें एक नोड पॉजिटिव होगी और दूसरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही दो पर्टिकुलर नोड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप होता है. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी तो एक पॉजिटिव, तो VRY इज इक्वल टू VR माइनस VY
वी वाई बी लिखोगे तो आपको मिलेगा वी वाई माइनस वी बी, वी वाई माइनस वी बी, और वी बी आर करोगे तो वी बी माइनस वी आर। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ा है, यहाँ पे देखो आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ा है। ओके, जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आर, वाई और बी रिस्पेक्टिव फेजर आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट। रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से फेज करंट हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा बाय पर्टिकुलर एंगल। तो इसलिए आपको ये आई आर मिल गया, वाई से वी वाई से आई वाई मिल गया, और वी बी से आई बी मिल गया। अब क्योंकि इक्वेशन आपका क्या आया था, इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी बी, एंड वी बी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब आपको फेजर डायग्राम में भी क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव पॉजिटिव वोल्टेज का नेगेटिव पार्ट में निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने क्या किया, निकाल लिया। निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइंस रेस्पेक्टिवली। तो ये देखो आपने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हुई है ना, मतलब वी आर के रिस्पेक्ट में वी बी से पैरेलल लाइन लिया, और वी आर से वी बी के रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइन निकाल, जो भी मैच हुई उसको आपने क्या कर दिया, ओरिजिन से मैच कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे किया, यहाँ पर किया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपको 3 रिस्पेक्टिव पैरेलोग्राम्स मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेलोग्राम हमको इक्वेशन मिलता है। क्या इक्वेशन होता है वो, वी आर वाई द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू फेज वोल्टेज इंटू कॉस 30 डिग्री। ओके, तो cos 30 डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ आप देखो रिस्पेक्टिव एंगल्स जो मिल रहे हैं हर एक फेजर के बीच में, वो हमको 30 डिग्री का मिल रहा है। इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, cos 30 डिग्री ले रहे हैं। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे 2 वी आर इंटू √3/2, 2 कैंसल हो गया। तो वी आर वाई इज इक्वल टू √3 इंटू वी आर, दैट इज वी एल इज इक्वल टू √3 इंटू वी पी।